is. That is just because 2.75. 1 month is free, na? So it Yeah, is you just you have because of used the that free idea. account for 1 month, and अच्छा, then whatever the अच्छा. services that was like आपने IoT core का component बनाया, analytics का component बनाया, so that component you have not deleted, so that is in active state, so that's why they charge you, and they charge you like not for monthly bill. After that 1 month, that hour basis they have charged you. Okay, so can we do that thing? Like if these things are not needed, can we deleting them? Yeah, you can Can you delete those. help it out to deleting them? Since I do not want to delete this account just for nominal charge. हाँ, So सेम what सेम I मैं want मैं कि भी हाँ, delete what I करना want चाहती हूँ. कि उनमें जो जिन पे आपकी प्राइसिंग जाती है कि इंस्टेंस क्रिएट किए हैं, उन पे या रिसोर्सेज जो ऑक्यूपाई नोटबुक किए हैं, तो इंस्टेंस वो है, हम नोटबुक सेज में का नोटबुक हमने जो क्रिएट किया है, मेनली उसमें प्राइसिंग जाती है, बाकी स्टोरेज और ये सब में नहीं जाते वैसे नोटबुक आई में। थिंक यस। कि हमें सभी डिलीट कर देना चाहिए, बिकॉज अगर हम प्रैक्टिकल लेके चल रहे हैं तो फिर तो हमें डिफरेंट ही अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, सब कुछ डिफरेंट लेके चलना पड़ेगा. तो व्हाट डू आई थिंक कि आई वी शुड डिलीट ऑल द थिंग्स दैट वी हैव क्रिएटेड टिल नाउ. ओके। व्हाट डू यू थिंक? मतलब आई दिस इज माय ओपिनियन, no, आई that's डोंट नो. thing. Like it is great. Like if the instances we can delete, then next time if we are implementing any हाँ, application, then we can create them. So we will learn हाँ, again. so Like that okay, this is confuse, how हाँ, instances we are will learn created. again, and so that confusion will also not arise ना, कि कौन सा कोड था, कौन सा वो क्या नाम था. तो अगर हमारे पास एक ही एक तो हम याद भी हो जाएगा हमें कि कैसे करना है, और दूसरी चीज ये भी हो जाएगा कि हमें पता भी चल जाएगा. पता नहीं, हो सकता है किसी एप्लीकेशन के लिए किसी इसकी AWS की किसी पर्टिकुलर सर्विस की जरूरत ना पड़े, किसी पर्टिकुलर कनेक्शन की जरूरत ही ना हो. तो जी। वो फालतू में अगर बना हुआ है तो वो उसकी मतलब. बट लाइक वॉट एवर वी हैव सीन, it's related to the all the services, so हाँ, the या reason वी why हैव. I said not to like delete it, so that in case tomorrow if you want to see it, take the reference from that, you can take it. If you हाँ, delete it ओके. and you हाँ, हाँ, don't have those नॉट thing, लीजिए. then आपको We थोड़ा can different, follow video lecture for that, isn't it? you can follow it like if you can, because video हमने जो create किया है, like in that case we got some error, we resolve it, so थोड़ा सा एक lengthy videos है, and like you will lose interest if you look for a long time. नॉर्मल ये होता है कि एक प्रॉपर फ्लो में जो हम अगर वीडियोस रहे, जिसमें हम लाइक इफ वी continues we are doing thing, then it's not the problem. And if you are working in the cloud, obviously the error will occur, like IAM role error, policy error, or name error. This thing obviously occur when we work on. So that's the thing here. And if it's on you, like if you feel you can from the video you can do it, you can delete it, because if you don't delete it will going to charge you. At least you can delete SageMaker, that instance that we created, because that instance otherwise that instance SageMaker only we cost you more. The rest of the instant like storage and all, they won't cost. What happened? Why it's not logging? Amit, we have done some resource allocation for a complete set in IoT core as well, or IoT analytics. Hmm. That time we got messages like this will charge you and all that. So please help us to delete these instances and all that. Yes, yes. Yeah, can you just share your screen? I can help you. Just a second. Yeah, I'm just making you host. 1 minute. And regarding hardware, you are asking, ma'am, right? So that hardware is like normal hardware install. That hardware obviously sir will going to tell you. But the thing is like that hardware devices that are used in the company, mainly manufacturing industries and all that, like very difficult to have. You just need to connect it with your device and start writing the code. No, we just want to check with simple like devices like type of sensors or with Hmm. Arduino or Raspberry Pi. We are not aiming for the high-end devices. Like simple devices where we can Yeah, fetch the data, we that's can process sir the will going data. to A tell very you. That's Yeah. simple the application, a very simple application, so that we get a feel
about Hmm. the actual what is actual this AWS IoT is. Okay. Sir Okay, will, my yeah, I screen is spoke there. with sir. Yes. Okay. So which thing we need to delete, please suggest us. Yeah, click on this IoT core. Just 1 minute, okay, ma'am? Yeah, give a minute. Ma'am, I think like at least you should wait for that hardware class, because suppose in case making connection you need those hard IoT core names and all. In that case, you will get stuck. So But we do not remember these core names and what we have Um, given. Don't even let S3 bucket and don't remember S3 these bucket you can things. delete it that are not in use. Mm. So IoT Mm. core, in fact, that names we do not Go to the remember. audit. Dipti, do you remember? नो आई डोंट रिमेम्बर वो ड्रॉप डाउन में आ जाता है तो ठीक है नहीं तो मुझे तो एक भी नाम याद नहीं है. No, yeah, it's I can understand that it's difficult. Um, can you go on this board and all on board? No, no. Just click on this. Is there any one place from that we can delete everything or we have to delete each and everything from मतलब IoT core को अलग से delete करना पड़ेगा IoT ThingWork को Yeah, अलग से. like don't we have Yes, that provision like going into account and then we can see these are the things we have no, no, no. created and You can do one thing. You can delete the SageMaker instance, but in IoT Analytics, the SageMaker instance that we are given it, will you able to do it? So you can delete it. Otherwise, it won't cost you much. I think like even if you see in the next month, it will max to max. It will going to charge you like if you don't use it. Okay, you can do one thing. Go to the SageMaker. Just search for AWS SageMaker. Search for a notebook. Yes, notebook instance. Yeah, just click on this. Click on action. You stop it, so it won't charge you unless now it is stop. If you want to start, just click on this action again. Now rest of the thing will give you the billing like 5 to 10 rupees itself, not more than that. This will going to charge you more, this instance. So you can just click on the action and you can start it in case when you want to do work on this. Click on action. No, you select it. Ma'am, just wait. I'm just it coming. is still stopping. It's not Yeah, yeah, stopped it's yet. stopping. Just 1 minute. I think that courier guy came. I'm coming. 1 minute.
मैम, yes, ma'am, actually it will take some time. It's stopping, its status is stopping, right? Am I Okay. audible, right? तो Yes, yes. ये जैसे स्टॉप हो जाए ना, उसके बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। आप एक्शन पे जाओ, क्लिक करो, ये स्टार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, राइट? तो ऐसे ही आप इंस्टेंस को जब ऑन कर सकते हो, जब भी आपको इंस्टेंस क्रिएट करना रहा। कुछ एक्स्ट्रा थिंग भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपको मशीन लर्निंग का अगर कोई प्रोजेक्ट करना है ना, तो आप इसको नोटबुक इंस्टेंस क्रिएट करना और उसमें फिर मशीन लर्निंग के जो कोडिंग है, मतलब पाइथन या डेटा एनालिसिस के या पाइथन से रिलेटेड स्टफ जो भी है उसमें आप कर सकते हो। तो वो हम गूगल कोलैब पे भी कर सकते हैं, तो वहां पे भी तो अपना वो क्लाउड में ही रहता है आई थिंक, फिर हम यहाँ मैम क्यों कोलैब करेंगे? में रहता है, बट द थिंग इज दैट कंपनी जब वर्क करती है तो कोलैब में मतलब वो पेड अकाउंट में ही वर्क ओके करती ओके है, ओके ओके। फ्री में नहीं करती आपको। हम्म। मतलब कोलैब में लिमिटेड सर्विस है, मतलब राइट राइट। उसमें मेमोरी और रैम इंक्रीज करना। अभी आपको मैं बोलूँगा डीप लर्निंग का एक प्रोजेक्ट बनाओ तो कोलैब में थोड़ा बैठ जाएगा, क्योंकि कोलैब में मतलब गूगल क्लाउड तो हम भी यूज़ करते हैं कि कोलैब यूज़ करते हैं, बट लाइक सेज मेकर इंस्टेंस अगर आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ AWS क्लाउड यूज़ होता है, क्योंकि नो बडी यूज़ टू क्लाउड, ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन they don't use the two cloud, they only use one cloud, because lot of charges are there, billing is there. So इसलिए मैंने कहा कि like in case you want to do it machine learning task, data analysis task, you can do it by simply creating this notebook instance, and when your work is done you can stop it and you can restart it. You can see here, now you are getting action start. Just click on this start now. Here ma'am, not there. You can see on right hand side start option on the action start is come. Yeah, click on that, so it will going to start. You see it is pending. After some time it will going to be in active state, so you can open it, right? So ये एक notebook को आप इसको फिर से stop कर दो, जब भी use होगा like you can start it again. I think it won't give you option for stop, after some time you will get it, so you can do it. Just wait for 1 minute. You can open another tab and search about this IoT core or defender. We will going to delete those, but in case while hardware and all if you require it, then you have to create it again. IoT core पे क्लिक कीजिए। मेरे ना सेज मेकर में फेल्ड बता रहा है। हाँ मैम, मे बी नेटवर्क इशू होगा। आप एक बार इसको फिर से स्टॉप करने का देखिए। आर यू गेटिंग नहीं द नहीं ऑप्शन? टॉप नहीं, मतलब मैंने जब खोला है ना अपना सेज मेकर, हम्म तो उसमें ही वो स्टेटस जो क्रिएटेड इंस्टेंस है नोटबुक इंस्टेंस, हम्म उसके स्टेटस पे फेल्ड बता रहा है। स्टार्ट करूँ क्या उसको? हाँ हाँ, है ना, स्टार्ट करके देखो एक yes, बार। you just start once because it need to have a internet connectivity, so sometime due to the इधर से बोल रहा है कि स्टेटस पेंडिंग नॉट इन स्टॉक व्हेन अनेबल टू ट्रांजिशन टू पेंडिंग फॉर नोटबुक इंस्टेंस। can you show me आई a थिंक। screen? I can't, and that's just अच्छा, show me. कैन यू प्लीज मेक मी होस्ट? Yes, Manju ma'am, can you just make her host? And Swarnita ma'am, you also, if you stuck somewhere, please ask. कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes. सी अच्छा, यहाँ पे ऊपर देखिए कुछ आ रहा है एरर। यहाँ पे ना जो स्टेटस वाला है ना, यहाँ पे फेल बता रहा था, तो फिर मैंने एक्शन में जाके इसको स्टार्ट करा, तो ये बता रहा है वैलिडेशन एक्सेप्शन समथिंग, पता नहीं क्या। स्टेटस पेंडिंग नॉट इन स्टॉप फेल अनेबल टू ट्रांजिशन टू पेंडिंग।
Ma'am, am I audible? Am I audible? Yes, you are audible. Yes, you are audible. Yes, you are. Yeah. Have you done this lab? Means when I was explaining this AWS Analytic Analyzer at that time, have you tried to create instance and open the notebook and run that cloud storage? Have you tried that? Have you seen that a notebook is opening or what? Because ये आपका notebook ही fail हुआ है शायद या creation में fail हुआ है something. Unable to transition to pending from notebook instance. क्योंकि ये some maybe it's an error of that some roles and ये all. इंस्टेंस क्रिएट ही नहीं हुआ है। Yes, I am thinking like that. दीप्ति, उस टाइम पे जुपिटर खुला था तुम्हारा, जो हम कमांड वो एक छोटा सा कोड चलाया था? हाँ, मेरे ख्याल से मैंने किया तो था। वैसे कोई नहीं, मैं एक बार आज चेक कर लूंगी इसको, है ना। एक बार सेज मेकर वाला मैं वापस से चेक कर लूंगी, देन आप फिर क्लिक मैं कीजिए, क्रिएट नोटबुक इंस्टेंस में क्लिक कीजिए, यहाँ पे नेम दीजिए, इंस्टेंस नेम। कुछ नया नाम दे दूं ना। हाँ, हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उसको देखते हैं स्टॉप हो रहा है कि नहीं। हो सकता है कुछ एरर हो, ध्यान नहीं। हम्म। ये इंस्टेंस टाइप तो यही रहने दूं। यस मैम। एनेबल गिव यूजर रूट एक्सेस टू द नोटबुक, एनेबल। आई एम रोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। यस, जस्ट क्लिक ऑन दिस, या एंटर यूजर एग्जिस्टिंग यस, रोल, एंटर अ कस्टम IAM रोल। और IAM रोल हमने क्रिएट किया है क्या, ये देखना पड़ेगा। तो आपने शायद IAM रोल क्रिएट नहीं किया, इसलिए नेम नहीं आ रहा है। अब आई एम इसमें रोल आप क्रिएटेड मेरा। अच्छा, देखते हो, ओके मैम, इसमें क्लिक कीजिए आप, किसमें? एंटर IAM रोल, अच्छा, क्रिएट अ न्यू रोल। या No, अच्छा enter create a new role. अच्छा क्रिएट अ न्यू रोल। Yes. Now here any S3 bucket. Okay, scroll down. Hmm. Yes, create a role. Now ये कॉपी कर लीजिए इसको, Amazon SageMaker एग्जीक्यूशन रोल, इसको ओपन करिए नेक्स्ट टैब में। इसको कॉपी कर लो यहाँ से। कॉपी नहीं होगा मैम, शायद ये एक लिंक है, तो एक बार जाइए या उसमें एक बार जाके देखते हैं। मतलब वो सेज मेकर इंस्टेंस क्रिएट होने का एक मैसेज है वो। अभी इसमें देखते हैं IAM रोल में क्या आ रहा है, तो उस हिसाब से हम फुल एक्सेस ऐड कर देंगे। ठीक है, आपको मेरा आई एम वो मैंने खोला है, दिख रहा है ना? यस यस, स्क्रीन दिख रही दिस है। नाउ यू कॉपी दिस वन, रोल ARN जो दिस है। रोल आ रहा है। हाँ, इसको कॉपी कर लो आप। नाउ गो टू कॉपी दैट कर सेज लिया है। मेकर। यस, Yes, हाँ। नाउ यस आई थिंक नाउ इट वोंट टेक इट मच। ओके, आप क्लिक ऑन दिस क्रिएट नोटबुक, उसने शायद ले लिया है वो। आप क्लिक करिए उसमें, देखते हैं इन केस इफ इट फेल देन वी नीड टू ऐड ARN रोल, अदरवाइज इट विल वर्क। So it is showing yeah success. Did you get this message before? ये fail जो हो रहा है ना, ये हाँ, आप शायद क्रिएट ही नहीं हुआ है। आप इसको स्टार्ट करो वंस अगेन, यू ये क्लिक ऑन दिस इस वाले स्टार्ट। को वापस से स्टार्ट करूँ, पुराने वाले को? अभी आपने कौन आप सा किया है, नोटबुक और अब इंस्टेंस? ये तो अभी जो ऊपर पेंडिंग आ रहा है ना, जिसका स्टेटस, वो अभी क्रिएटेड है। हाँ, तो ये अभी टाइम लगेगा इसको क्रिएट होने में इसमें। ठीक है। बट ये मैसेज आ गया, सक्सेस योर नोटबुक इंस्टेंस हैज बीन क्रिएटेड। हाँ हाँ आप इसको स्टार्ट हाँ, क्लिक करो। अभी पेंडिंग, ये दूसरा वाला, ये तो पुराना वाला है जो हाँ, तो फेल्ड आप दिखा इसको रहा है। स्टार्ट तो करिए आप। अभी आप थोड़ी देर वेट करो। हाँ, तो ये बोल रहा है स्टेटस पेंडिंग नॉट इन स्टॉप, मतलब वो क्रिएट नहीं हुआ है। नहीं हुआ था, अच्छा ओके। अभी आप थोड़ी देर ये इसको वाला दूसरा तो शायद हाँ, क्रिएट हो गया इसको है। इसमें व्यू डिटेल पे क्लिक करिए, ग्रीन वाले में। हाँ, हाँ, इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी और देन वी विल सी इट, क्या क्या आपने कॉन्फ़िगरेशन सेट किया है, सब आपको डिटेल्स इसमें मिल जाएगा। अब आप वो स्टेज में कर बैक जाइए अच्छा। या बैक, गो टू द बैक सेट या नोटबुक इंस्टेंस ऐसे में। नो नो, यहाँ क्लिक से ऑन बैक दिस दो नोटबुक कि नोटबुक इंस्टेंस इंस्टेंस? या अभी आप उसमें थोड़ा वेट करिए, ठीक है, मतलब एक मिनट थोड़ा वेट करिए। ठीक
ठीक है ठीक है इसका कैसा स्टेटस चेंज होता है, तो फिर हम फिर कहते हैं। ठीक है। आप IoT कोर का आपने जो मुझे दिखाया था कि इसमें डिलीट नहीं हो रहा है, कैन यू गो टू दैट IoT कोर? ठीक है। कहाँ पे जाना है आप? मैम इसमें देखिए ऑन बोर्ड में गेट स्टार्टेड। यस, उसमें कोर नेम शो हो रहा है कि नहीं देखना है। ऑन बोर्ड डिवाइस, गेट स्टार्टेड, लाइनक्स और ओके विंडो पाइथन। आपने ये विंडो पाइथन का एरर रिजॉल्व किया है राइट? हाँ सॉल्व हो गया था ये, हाँ, तो ये एक्चुअली इससे जाने में, लग गया था। हाँ यहाँ पर चूज एग्जिस्टिंग वन, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है चूज एग्जिस्टिंग थिंग इंस्टेड। एग्जिस्टिंग थे, हाँ हाँ। अब यहाँ पे आपने जो क्रिएट किया है उसको Emoji। सेलेक्ट करिए। इसमें से डिलीट कैसे, एक मिनट। हाँ वो ये मैंने उस टाइम डिलीट नहीं हो रहा था ये मेरे से चारों। एनी मैंने फिजिकल आपसे डिवाइस नीड पूछा था टू ना, फिर मैं थिंग भी टू भूल वर्क गई विद आपसे AWS पूछना। क्रिएट अ चूज द ये थिंग। चारों फेल हो गया था, ये जो चारों है ना, ये मैं कई बार ट्राई करा था तो ये चारों फेल हो गया था, बट ये लास्ट वाला सही था। क्रिएट अ थिंग करो। नो नो, नहीं नहीं, वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा। बैक जाइए, देखते डिलीट करने का ऑप्शन कहाँ है। डिलीट का ऑप्शन वैसे दिख रहा था हमें उस दिन, पता नहीं कहाँ। या गो बैक टू वन स्टेट। बैक करूँ, यहाँ से बैक करूँ? यस, नीचे भी ऑप्शन होगा प्रीवियस का। अच्छा आप मैंने पूरा ही ऑडिट बैक कर ऑडिट में दिया। जाइए। अच्छा और एक सेकंड। ऑडिट, ऑडिट ऑडिट, या डिफेंड डिफेंड। डिफरेंट में ऑडिट है, ऑडिट में ऑडिट, जाओ। उसमें डिवाइस नेम वगैरह है क्या देखिए रिजल्ट में। रिजल्ट्स, बट ये won't charge you even if it if you don't delete it, it won't हाँ charge you because एक्चुअल में वो वर्किंग स्टेट में नहीं है ना, मीन्स लाइक हाँ, वो you तो वो बना ही नहीं था, वो जो चार है ना बाकी वो बना ही so नहीं they था। are हाँ not in a working state so it won't charge you। अच्छा, अभी इसमें ये से पता नहीं। आप डिलीट कर सकते हैं शायद। IoT डिवाइस ये सब कंप्लायंट है, so it is successfully है। So it is just a message, audit result, that whatever auditing connection you did it was successful. Can you click on this green grass? यस। Click on this getting started, ये हमने कल जो देखा था ना वही है। Yeah, click on this view ma'am, Manju ma'am, can you just share the screen to ma'am also? Mail What? yesterday, green grass mail Okay. link। Okay. वो शायद मैंने किया था कल वाला, IoT ग्रीन ग्रास डिप्लॉयमेंट वाला ना। हाँ हाँ, ये देखो अब ये है ना, आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस यस या। तो इसमें बोल रहा है कि add a core, just go up the deployment target on AWS IoT thing group, add a core device। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, तो ये कनेक्शन 1-to-1 कनेक्शन हो जाएंगे डिफरेंट हाँ, अगर कोई सर्विसेज। डिवाइस होगा ना हमारे पास तो। लेकिन आपको डिप्लॉयमेंट मैसेज सक्सेसफुल आया ही होगा जब आपने डिप्लॉयमेंट में क्लिक किया होगा। ये तो मेरा हो गया था, आई थिंक कल वाला हाँ, ही है ना ये। यहाँ हाँ ये ये शायद हो गया। IoT ग्रीन ग्रास बेस है थिंग हाँ ग्रुप क्रिएट ये, करने का। हाँ ये हो गया था, ऊपर शायद नोटिफिकेशन आया था ग्रीन कलर से क्या, मुझे हाँ जहाँ तक हाँ, याद यस यस है। हाँ हाँ हाँ। मैम, if ये yeah, so you can, if even if you don't delete it, it won't be a charge for you। S3 bucket चेक कर लीजिए, जहाँ पे आपने लाइक स्टोरेज क्रिएट किया था, if you have anything that is not relevant you can delete it। अच्छा, तो वो S3 बकेट यहाँ पे टाइप करूँ क्या? Yes। Amit, do we need to do anything in IoT core? No, Any instance? Nothing we need to stop, right? no no। What were you saying? IoT S3 बकेट है ना?
आप S3 बकेट कह रहे थे ना? यस मैम। हाँ, यहाँ पे कुछ मैसेज भी आ रहा है, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर कॉस्ट ऑन S3। यस, तो उसमें ऑप्टिमाइज करने के लिए आप जो फाइल रेलिवेंट नहीं है उसको डिलीट कर सकते हो। तो दो ही है, एक तो अपने आप ही बना था ना जब सीडी के टूल किट वाला हमने किया था स्टार्टिंग में। हम्म। वो स्टार्ट एकदम जब फर्स्ट डे करा था सीडी के टूल किट वाला, कुछ कुछ करा था ये ना। शायद अपने सीडी के तो ये टूल किट बाद में ग्रीन ग्रास वाले से रिलेटेड है कि सर ने कराया था? ये शायद सर ने करा जब वो इंस्टॉलेशन वाला काम नहीं कर रहे थे हम लोग हम्म। स्टार्टिंग में, जब कर रहे थे जहाँ पे स्टक हो गए थे लास्ट में जाके, ये वो जी। वाला है। ओके। सर ने नहीं कराया, इट्स फॉर 23rd June, आई थिंक अमित हैज स्टार्टेड बाय। नो नो, आई स्टार्टेड ऑन 38 जून। मैंने अच्छा फर्स्ट क्लास 30 को ली है। अच्छा अच्छा, तो So ये since फिर I have created 3 buckets, S3 bucket, 3 हम्म are showing. So can't I delete all 3, or it is there is simple Excel file is there, या यू hardly कैन two डिलीट three इट। GB. So do I need to delete ये them? सीडी के टूल किट तो डिलीट ही कर दूं मेरे ख्याल से, इसकी तो जरूरत है नहीं। या यू कैन डिलीट इट, इट वोंट So directly that buckets जस्ट can सी वेट we वेट। should delete. ये तो आराम से डिलीट हो जा रहा है। इसके अंदर कुछ था क्या, आपने चेक किया? ये बकेट इज नहीं, नॉट ये एम्प्टी। दिस इज नॉट, दिस क्या? बकेट इज नॉट। इसके अंदर डेटा है, आप डिलीट नहीं कर सकते, आपको डेटा डिलीट करना पड़ेगा। कैंसल इट। कैंसिल। क्लिक ऑन दिस कैंसल। यस। तो पहले इसको क्लिक कर, ऊपर इसे क्लिक करके यस खोलूंगा। यस। नए टैब में खोल लेना चाहिए। जस्ट 1 मिनट। ओके। ये इसमें क्या आ रहा है, असेट्स और सीडी के वो दो फोल्डर्स, दोनों खोलूं क्या अंदर? वेट मैम, आई एम जस्ट वेट लुकिंग इनटू दैट। ये वो स्टार्टिंग वाला ही है। हाँ, आप ओपन कीजिए एसेट। उसके अंदर कौन सी फाइल है? अरे डायरेक्ट डायरेक्ट क्लिक करने से भी ओपन हो जाता है। अच्छा, आप कहते हो नए टैब में खोलूंगा। हाँ ओके ओके ठीक है। आप खुद ही बोलते हो नए टैब में खोलो, फिर बोल रहे हो। मैम तो नए टैब में जब हमें ऑपरेशन करना है उसमें इसमें अच्छा इसको तो आप डिलीट कर सकते हैं ना, चेक करके आप। अच्छा, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, पता नहीं क्या क्या। अम, एक मिनट, आप स्क्रॉल करिए नीचे जाके राइट साइड पे, तो उसके अच्छा इसमें ये फाइल्स मुझे नहीं लगता मैम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सर्विस तो मैंने आपको जब बताया था तो हमने उस समय ये नहीं किया है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। कर दो पूरा सेट हाँ मैम, कर दीजिए। यहाँ आपको से। फाइल बाय फाइल डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि बकेट में अगर डेटा रहता है तो वैसे डिलीट नहीं होता। यस, आप क्लिक करिए, आप यहाँ पे डिलीट में जाइए। यू यस, डिलीटिंग स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी अनडन, या इट इज सेइंग अगर आप डिलीट करोगे तो रोक नहीं सकते बीच में। हाँ, हाँ तो बस कर दीजिए। नीचे कुछ कंफर्मेशन मैसेज है क्या? हाँ, यहाँ पे डिलीट टाइप करिए। परमानेंटली डिलीट टाइप करना है कि खाली डिलीट? आई थिंक टाइप परमानेंटली। परमानेंटली डिलीट। ये आ रहा है ना बॉक्स में, आपको दिख रहा होगा पर या गूगल में सिर्फ डिलीट टाइप करना पड़ता है, गूगल क्लाउड में हम तो सब क्लाउड एक जैसे ही है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है उसमें। अच्छा, ये डिलीट हो गया। हम्म। आप क्लोज कर दीजिए इसको। आप सिमिलरली वो दूसरा फोल्डर पे भी डिलीट कर सीडी के दीजिए। वाला भी कर दो ना? जी। अच्छा एक मिनट एक मिनट। अच्छा आप इस अभी असेट को डिलीट कर चुके हैं ना, तो उसको क्लिक करके हाँ डिलीट कर दीजिए। हम्म।
सेम आपको परमानेंटली डिलीट का नीचे ऑप्शन आएगा. Fail to delete. Information below will no longer be available because you navigate away from this page. Okay. इसमें डेटा नहीं है तो आप जब बकेट डिलीट करेंगे आउटसाइड से तो अब डिलीट फिर हो से जाएगा. डिलीट हो जाएगा। अच्छा, जी. ये एज एनालिटिक्स स्टैक वाला कर दे। ये जेनेटिक्स टैग वाला हम शायद ग्रीन ग्रास के समय हम किए थे. बट ये हाँ, ये बट सर कह रहे थे कि लाइक ओके मैम ये रहने दीजिए आप. अच्छा वाई ठीक, एम एल फाइल कुछ है ना ये. तो ठीक है, ये रहने दीजिए. ठीक है। इसमें एक्चुअली में ये कुछ ग्रीन ग्रास से कुछ एरर जो आया था आप लोग का उस समय उसके हम्म, रिगार्डिंग है. अच्छा, तो आप अभी क्लिक करके ग्रीन ग्रास में फिर से जाइए. यहीं पे तो आना है। अच्छा, ग्रीन ग्रास पे जाऊँ? ये हो गया मैम. अच्छा ठीक है। आप इसमें क्लिक करिए. वेट वेट. आप वो S3 ऑप्टिमाइज वाला ऑप्शन है ना यहाँ पे उसमें जाइए या लर्न मोर पे जाइए. लर्न मोर। साइन इन करूँ क्या वहाँ पे उसको? नो मैम. आपका ये अकाउंट में लॉगिन है ना. बस आपको रीड करना है यहाँ पे. ये एक्चुअली में डॉक्यूमेंट है तो इसमें बता रहा है हाँ, ये डॉक्यूमेंट रिड्यूस योर स्टोरेज कॉस्ट कैसे यूजिंग आप? अमेजोन S3 स्टोरेज लेंस. आप स्क्रॉल करिए. हम्म, तो ये कह रहा है कि एक और सर्विस होती है स्टोरेज लेंस करके उसको आप अगर यूज़ करेंगे तो अपना रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट. बट अपने पास अभी इतना डेटा है नहीं तो कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. और ये प्राइसिंग पे क्लिक करिए. आप बोल रहे थे प्राइसिंग कैसे देखते हैं. ये अच्छा प्राइसिंग आपको दिख रहा है. वैसे स्टोरेज का कॉस्ट बहुत कम होता है. 200 GB का ऑलमोस्ट 2,000 रुपये कुछ चार्ज करते हैं वो भी पर ईयर. ठीक, यहाँ पे कुछ है तो? यस यू कैन सी 50 TB पर मंथ का 0.023 पर GB. तो 1,000 के आप इंटू कर दीजिए कुछ 23 रुपये कुछ $23 समथिंग है ना. तो $23 मतलब 1710. हाँ लगभग मैम 1,800 लगभग करीब पर मंथ. तो आपका साल भर का वही लगभग 20,000 में आपका 1 TB मतलब 20,000 में आपको कितना मिल रहा है लाइक 15 TB मतलब ऑलमोस्ट 6 पेटाबाइट मिल रहा है. हार्ड डिस्क महंगा पड़ जाएगा उसमें तो. हाँ, अगर आप मार्केट में जाएंगे अगर आप परचेज करते हैं तो वो 6 पेटाबाइट का तो अभी ऐसा आता नहीं है. लेकिन अगर 10 TB इस टाइप का अगर लेते हैं तो वो कॉस्टली पड़ता है. तो ये बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी यूज दिस क्लाउड. और ये भी डिफरेंट है S3 स्टैंडर्ड वन S3 इंटेलिजेंट टियरिंग. सो ये बेस्ड ऑन लाइक योर फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सेसिंग द डेटा. अगर साल में हम्म we have 6 varieties of S3. Yeah, so like if you want to access the data only once a year, then their pricing are different. Frequency pe pricing hai, means like if you want to access once a month, then standard one means you basically frequently access the data, like your for mobile, just like your mobile and mobile data so like that. Tearing and all those are like unknown, where the pattern get changes. So yeah, standard intelligent tiering. So based on this, you can optimize this. So अगर जैसे हम स्टोरेज क्रिएट करते हैं so there is an option of selecting this all whether you want to create infrequent access. This infrequent access will have a very less price. You can see Because 25